Yeah, hi guys. Welcome to Geeks for Geeks practice. So you might be a bit surprised that instead of Piyush, I am here today. So due to some unavoidable reasons, Piyush cannot join today. So I am here in place of him. So it will be great if you could just confirm that if I am properly visible and audible. Okay, yeah, Shaikh is commenting. Eagerly waiting for Pawan sir. Yeah. Pawan will be here in a moment. Yeah, guys, can you just confirm that if I am properly visible and audible? Guys, it would be really great if you could just confirm and then we can begin with today's session, which is going to be really interesting. Okay. So I hope I am properly visible and audible. Okay. So let's begin. So before spending any more time, let's come straight to the point. So today, as you might be aware, right? As you might be aware from the title, that we are going to show you the field or the concept of pair programming, and it will be in like what will I say, if I try to better introduce you like exactly how we will be doing. So we are trying to mock this style of ICPC contest, okay, and that will be done by two people, and I hope you have seen the precap for them. Like one will be Anil, who is a candidate master at Codeforces, and other is Pawan, who has 5-star at CodeChef and he's an expert on Codeforces. So guys, it will be really a great session, an informative session. Okay, we are going to see a contest. It will have 3 questions, and both the people, okay, Anil and Pawan, is going to solve them using pair programming. Okay, and it will help you. Like you might have heard about like how two people, or even in ICPC we have 3 people, right? Where they contribute, like as a team they try to code, right? So it will give you a lot of insight. Okay. So without wasting any more time, yeah, hi Rohan. So without wasting any more time, let's call Anil and Pawan, okay? So yeah. Yeah, hi Anil. Hello, Rohit. Yeah, hi Pawan. Hi, Am I Rohit. audible, How are Pawan? you? Yeah, I am great. I hope both of you guys are doing good. You are audible to me. Okay. That's Yeah. great. Hello, So Anil. Pawan, yeah, is there any lag in my voice, or is it fine? It's fine. It's I fine. think It's fine. it's fine now. Okay. That's great. So it would Hello, be Anil. How great, are you Pawan, doing? like if you, uh, Hello, yeah, Anil. good Am I actually. am I audible? Yes, yes, Pawan, sir. you're audible. Okay. Okay, fine. Okay, great, guys. So it would be great if you could just give an insight on about ICPC contest, like the rules or the team formation, or what should be the Yeah. path for our audience. Like it would be really great. So let me first explain about the ICPC contest. So Okay. as like the all the people who are doing competitive programming must be knowing about it. But still, let me give a brief like intro thing about ICPC. So it is, first of all, it is unlike many other contests, it is a team event where a team of 3 participates. And the structure of ICPC is like we will have first an online qualification round, and the teams which qualify for the online rounds are eligible to participate in the regionals, which are generally held at 4 sites in India. But I think
this year, due to the pandemic situation, it will be there is only one active site till now, and the online round is, I think, next month. It is going to like happen. So keeping that in mind, we decided to give some of the feel of the ICPC by organizing this team event, like pairwise coding event on our channel. So I hope like all the viewers can get some insights like how team works during the contest, and what is the flow of coding in team, and how we discuss the problem and how we come up to the solution. So this is the main purpose of this stream, and Anil will give more rules about the ICPC, I think. So Anil. So standings are prepared by most number of problems solved by a team, and there's a penalty of 20 minutes per wrong submission, and total penalty is calculated by summing up the penalty for each submission, and there is no penalty for each unsolved problem. So let's say if a team solves highest number of problems, so that team will be on the top, and the teams will with lower penalty have a better ranking. So that's how standings are prepared in ICPC. Okay. Yeah. So basically, the first emphasis on solving more and more problem, and apart from that, it is also important to solve them fast. So this is the main thing we have to keep in mind also while doing the ICPC. But like today, we are not going to rush into the solution, as we want to make the solution more understandable to the audience also. So we will be discussing them like very deeply. Yeah. Okay, that's really great. Thank you, Anil and Pawan. So it was really nice, like hearing from both of you, because you have that experience, right? So let's straight away move to the contest. Okay, let's move to the questions, and let's see how you people do. Okay, so it will be great, Pawan, if you could just share your screen, like, and you can go through the contest. Okay. Yeah. Okay. I'm sharing. Yeah. Okay. So just one thing, guys, like to my audience, now Pawan will be sharing the screen. Okay, and I will be sitting aside monitoring the stream. Okay. So over to you, Pawan and Anil. Okay, so Pawan, please share the screen, and let's have a good round of pair programming. Okay. Okay, fine. Okay, Rohit. See, I have shared my screen. No, it is not visible yet. Okay, I think now it will be visible, right? Yeah, the screen is visible. Okay, so as everyone can see that I haven't registered yet, so I'll be registering just now. So this is the contest here. Okay, here are some instructions. There will be 3 problems which we have to solve, and the duration is 1 hour, I think. So yes, the let me start. 1 hour. What is the penalty? There is no penalty, I think, as such. It is just there is 5% penalty for each wrong submission. Okay, so let's move on to the contest. And first of all, let me clear one more thing to the audience, that as we want to, like, it is not any formal stream where we are just going to give you the idea like how we work in teams. So there may be some discussion which is like random discussion, and maybe in Hindi also. So I think it will be great to see how like actually we code in team. So yeah, so this is going to be like that. Yes, it will be a pure raw discussion how we participate in various events, and as you can see, we have a doc opened which is named pair coding in the screen shared. So we will be using that doc to discuss our ideas. Yeah, so it is still loading. Okay. So while it is loading, let us talk something else, Anil. So let me give you idea about this pair coding thing. Like all the contests held by like in the technical fests of the colleges,
they are generally the team event. So where the team of one and two participate. So we have participated in like many of these kind of contests also. So it is going to be like that only, where we to discuss the logic and code the problems. So yeah. Finally, I think Click on solve problem below, I guess. Bottom right corner. no, here are coding problems. Okay. So let us start with the first problem, which is named optimal partition. Okay. I don't know if this it is public or not, this contest, but let us solve it. So first of all, let us understand the problem statement. So I think problem is visible to all. Can you read the Yes. question? Yeah, I will read the question. First of all, let me see if anyone in the chat can like write if the problem is visible or not perfectly. Then we should move on. Yeah, yes, visible. Okay, Ron. Yes, it's visible. It's visible. Okay. So let us read the first problem. So in this problem, we are we are given an integer array. Okay. Yeah. Okay. So let me first of all, everyone I think read the problem. So let me explain it to you. So in this problem, we are given an array, like this is the array of size 6 and one variable k. So the task is to divide this array into k partitions. So here what I mean by partition is I just have to partition, like for example, one partition could be from 4 to 8, another one is from 15 to 16, and another one is from 23 to 42. So these are the three partitions in which I can divide one array. So I have to divide this array into k partitions, consecutive subarrays, basically what I mean by partition. And the cost of the partition will be equal to the maximum array in the partition, which is 8 here, minus the minimum element in the partition, which is 4 here. So for this partition 4, 8, the cost will be equal to 8 minus 4, which is equal to 4. Similarly, if I partition the array in these 5 elements, then the cost will be equal to the greatest element, which is equal to 23, and minus the smallest element, which is equal to 4. So the cost of this partition will be equal to 23 minus 4, which is equal to 19. So this is the cost. So I have to partition my given array into k partitions, and I have to find the minimum cost which will be required to partition it. Yeah, so I think anything to add, Anil, in the question? No, I think I got the question. So we are given an array and a number k, and we have to divide the array in k subarrays. And the cost of a partition is absolute k consecutive. We have to divide it into k consecutive subarrays. Okay. Okay. One more thing is given. The array is sorted initially, so we don't have to worry about that also. Yeah. Okay. तो कुछ लॉजिक आ रहा है क्या दिमाग में? एक सेकंड, इसको एक बार डॉक में लिख के देखते हैं. तो 6-3 है, तो इसका पार्टीशन करना है हमको. तो अगर एक एरे को 3 पार्ट्स में पार्टीशन करना है, तो हमें 2 डंडियां टाइप बनानी पड़ेगी. जैसे चलिए एक रैंडम करके देखते हैं पहले, फिर देखते हैं कि मिनिमम कैसे होगा. तो जैसे एक यहाँ बना दी और एक यहाँ बना दी थी. इसकी कॉस्ट ऑफ पार्टीशन आएगी 8 minus 4 4, एंड देन प्लस 15 minus 16 1, एंड 23 minus 42 कितना होता है 19, which is 24. हाँ, ठीक है. And we have to minimize the cost.
ओके, सो एक ग्रीडी आ रहा है ना सॉल्यूशन दिमाग में, पहले ही सॉल्यूशन जो दिमाग में आ रहा है इसके लिए कि एक तरीके से बेसिकली फर्क किससे पड़ रहा है कि जो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस है ना, सिर्फ वही कंट्रीब्यूट कर रहा है ना हमारे उसमें कॉस्ट में। जैसे कि इस केस में क्या कर रहा था कि मान ले कि 15 और 8 ये बहुत बड़ा जंप हो रहा था एक ही उसमें, क्योंकि हम 4 और 8 पे पार्टीशन कर दिया और नेक्स्ट पार्टीशन 15 से स्टार्ट हो रहा था। तो हमारे आंसर में क्या मतलब एक गैप आ रहा था बहुत बड़ा, तो वो हो सकता है बेसिकली सब एरे में एलिमेंट्स क्लोज रखने हैं। हाँ, ओके। सो एक और चीज जो समझ में आ रही है कि अगर हमें k दे रखा है ना, तो अपने को ये k-1 ये डंडियां बनानी पड़ेंगी। हाँ, तो k-1 जगह कट लगाना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन। अच्छा चल फिर वैसे देखते हैं इसको कि एग्जांपल नहीं, सपोज कि हाँ कंटिन्यू करना। if we have Yeah, hi guys. I just need to add one thing. There is a doubt from Rohan, like what should be the cost, minimal, maximum. So it would be great if you could just look at them and guide the audience along with. Yeah, sure. Yeah, Rohan, we okay. have to So minimize the cost of partition. The cost of one subarray is continue. Sir. So let me explain like how what I mean by minimize the cost. Like in this example, as Anil sir right, that if we partition this array like this, then the cost is coming out to be 24, which is like equal to 8 minus 4, which is 4, 16 minus 15, which is equal to 1, and 42 minus 23, which is equal to 19. So when we let's take another partition. Now let's make this another partition. Instead of making it between 16 and 23, I will be making it between 23 and 42, right? And another one here. मैं कर रहा हूँ. So now we are making partition like this. यार अपने कर्सर हटाना एक बार अनिल. हाँ. So now this is the partition. So let us like अब देखते हैं इसका क्या cost आ रहा है. तो इसका भी cost आएगा 4 plus. Now here the maximum element is 23 and minimum element is 16. So 23 minus 16 will be equal to 8. 15. 23 minus 15 will be equal to 8. And here it is 42 only. So maximum element is 42 and minimum element is also equal to 42. So the cost of this partition is equal to 0. Right? So now the total cost comes out to be 12. So as we can see that in previous partition it is 24 and here it is 12. So this is more optimal. So like that we have to find what is the minimum. So in this case the answer will be 12, I think. As in the sample it is given 12. So we have to minimize this cost. I think now is the question clear to everyone? So now Rohan, please can you respond if it is clear? Yeah, let's see if it will work or not. Yeah, I think okay, Rohan, please confirm, and anyone. Yeah, okay. If anyone have any doubt, please confirm. Yeah, okay. So Rohan is writing that okay, so greedy won't work. So let us see in the solution. I think that greedy will work. In my opinion, greedy solution can work. Like I have an idea. Let us discuss first and let's see if it works or not. So as I was writing that if we have to divide the array in k parts, then we have to like make k minus 1 cuts. Let's say Akshay S says I am still confused, greedy or DP. So Akshay, we will go through the solution. Like we are giving this contest live, so we are not still sure that it will be greedy or DP, but we are coming to. But I think we can solve it using greedy. One solution in my mind which comes, it is greedy solution. So let us see. So we have to make k minus 1 these partitions, like these
lines. Cuts. K minus 1 cuts. Okay. So this is the thing. Now let us say that if I make my first cut, like this is the cut at index, say this is at index 2. So then, and we also know that the array is sorted. So अगर array sorted है तो क्या होगा, जो अगर मैं first वाला cut लगाऊंगा उसका cost क्या आएगा मेरा, a of 1 minus a of 0, right? Where 1 is the index where I am making first cut. So in this case, I am making cut at this 8 index. So the cost of this partition is equal to a of 1 minus a of 0, which is 8 minus 4. So this will be the cost of my first cut. First cut. Now likewise, the cost of the second cut will be equal to a of 2 minus a of 1 plus 1, because the next partition will start immediately after the first partition, right? So जो अगला partition का cost होगा वो उसकी next index उसका smallest element होगा, क्योंकि array sorted है तो मेरे को पता है कि a of जो ये 1 है तो इसकी जो next वाली index होगी वो smallest value देगा मेरे को उसके next partition का, right? So this will be the cost for my second cut partition or second sub array. Second sub array. So in this example, like I am making my cut at index 3. So this will be the like cost, which is a of 2 will be equal to 16 and a of 1 plus 1 will be equal to 15. So this will give me 16 minus 1 and so on. So I'll just write it for one more. Right, this is the case, and this will go for like my k parts. Right. So I think this part will be clear. Any doubt? Oh, any doubt? So basically, बेसिकली हम ये क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि एरे सॉर्टेड है, तो अगर एरे सॉर्टेड है तो मुझे पता है कि जो आगे वाले एलिमेंट्स होने वाले हैं वो पीछे वाले एलिमेंट से बड़ा होने वाला है. दैट इज व्हाई आई कैन मेक क्लेम दिस थिंग. सो दिस इज द थिंग. सो नाउ अब अगर मैं कहता हूं लेट्स जस्ट मेक 3 कट्स, तो फिर हम यहाँ पे k पार्ट्स की जगह जनरलाइज करके लिख सकते हैं a of n minus 1 minus a of 3 plus 1. अगर हम 4 ही कट्स ले रहे हैं तो अब इसको अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a of n minus 1 minus a of 0. ये एक चीज हो जाएगी. जो ट्रू ना हो हर केस के लिए. सो आई थिंक इट इज जनरल थिंग. नाउ अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ. सॉरी टू इंटरप्ट यू पवन, आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो गई थी, तो क्या आप लास्ट वाला पार्ट ले लेता हूँ जाके. ये चीज अच्छा. सो हाँ रिपीट कर दे लास्ट में. वॉइस कट हुआ था, कट के आ रही है थोड़ी. सो बेसिकली लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं एक बार वापस. हाँ तो कर दे एक्सप्लेन. तो वी बेसिकली हैव अ एरे, और जैसे मान लो एरे में यहाँ पे कुछ नंबर्स है आपके पास. तो एरे में हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स है. तो लेट्स से यहाँ पे 1 3 6 7 25 34. सो बेसिकली नंबर सॉर्टेड, इसीलिए मैं सॉर्टेड लिख रहा हूँ. 3 एंड ये मैंने एग्जांपल के लिए कुछ भी नंबर्स ले लिया, एरे में इतने ही लेते हैं, एक लाइन में आ जाए. सो लेट्स सपोज वी आर मेकिंग कट्स एट सम इंडेक्सेस. तो मैं कट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऐसे सिंगल लाइन से. ये हमारा एक कट है इधर, एंड ये हमारा एक कट है इधर, और एक कट है हमारा इधर लेट्स से. तो जो हमने फर्स्ट लिखा है a of 1 minus a of 0, ये हम यहाँ पे कट बना रहे हैं तो इसकी कॉस्ट आएगी 6 एंड माइनस a of 0 1. तो हम
एरे सॉर्टेड है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो सब एरे का सबसे पहला एलिमेंट होगा वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा और जो लास्ट वाला होगा वो सबसे बिगेस्ट होगा। तो हमें सब एरे के बाद सबसे पहले और सबसे एंड वाले एलिमेंट से ही मतलब होगा। ये बिगेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, तो इसको हम लिख सकते हैं a(1 - a(0). एंड सिमिलरली फिर ये सेकेंड सब एरे है, तो हम कहते हैं कि ये हमारा 2 इंडेक्स है, ऐसे नाम हमने 2 दिया है इसको, TWO2। तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, a(2) माइनस जो हमने लास्ट कट बनाया था, लास्ट कट हमने 1 पे बनाया था, तो इस एरे का एलिमेंट इंक्लूडेड होगा 1 + 1। तो यहाँ पे हमने लिखा a(2) माइनस a(1 + 1), जो लास्ट इंडेक्स इंक्लूडेड था उसमें +1। सिमिलरली इस एरे की कॉस्ट हम लोग लिख सकते हैं, 3 इंडेक्स माना है हमने जिसपे हम कट कर रहे हैं, तो a(3) माइनस a(2 + 1). तो ये हमारा पैटर्न बन गया बेसिकली। एक तो कोई भी जैसे हम कट बना रहे हैं तो उसको हम लिख सकते हैं a(j+1 - a(i), ऐसे फॉर्म में हमने लिख दिया। और जो लास्ट कट हम वो बना रहे हैं तो उसमें लास्ट एरे का एलिमेंट इंक्लूडेड होगा, वो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, तो a(n-1) माइनस जो लास्ट कट था हमारा a(3 + 1). तो ये हमारी एक इक्वेशन टाइप की आ गई। तो इसको हम रीअरेंज करके कुछ लिख सकते हैं। तो इसको रीअरेंज कर कैसे सकते हैं हम कि a(n-1) सबसे आगे ले आए, a(n-1) का साइन प्लस का है, इसको हम सबसे आगे ले आए। एंड उसके बाद में हमने किया -a(0) एंड इसके बाद में हमने जो सिमिलर कोफिशिएंट वाले सिमिलर नेम वाले वेरिएबल थे वो हमने एक साथ लिखे। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं a(1 + 1), इसका साइन क्या है, माइनस का है, तो यहाँ पे देख लो इसका साइन माइनस का ही रहेगा ब्रैकेट्स ओपन होने के बाद। एंड यहाँ पे इसमें से हम कर रहे हैं a(1 + 1 - a(1). तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो a(1 + 1) a(1) का साइन प्लस आएगा बेसिकली, और वो यहाँ पे बेसिकली पहले से प्लस है। तो हमने बस रीअरेंज किया इक्वेशन को, कुछ भी मैजिकल नहीं किया यहाँ पे। तो ये सबको समझ आ रहा है इक्वेशन जो रीअरेंज की है? सो नाउ यार करते हैं, क्योंकि फिर टाइम खत्म हो जाएगा। हम लोग करते हैं आगे, अगर कोई डाउट होगा तो ले लेंगे। तो अब इसमें हम लोगों को दिख रहा है कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का वो ले रहे हैं, डिफरेंस है बेसिकली ये a(1 + 1 - a(1), है ना। और ये कितना ये है, पहली चीज, जैसे 3, ये पहली चीज जो हमारी है, ये हमारी कांस्टेंट होगी, a(n + 1 - a(0), ये कांस्टेंट है बेसिकली। एरे का लास्ट एलिमेंट माइनस एरे का फर्स्ट एलिमेंट। तो अब ये क्या है, ये कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है वो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस कांस्टेंट चीज में से। देखो यहाँ माइनस का साइन है ना, तो अब हम क्या चाहते हैं कि ये वाली चीज जितनी बड़ी हो सकती है उतनी बड़ी हो बेसिकली, है ना। तभी हमारा आंसर मिनिमाइज होगा कि जो चीज हम आंसर में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो जितनी बड़ी होगी उतना छोटा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें पूरे आंसर को मिनिमाइज करना है और आगे वाला पार्ट कांस्टेंट है, तो हम चाहेंगे कि हम जितना मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं हम लोग उतना मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करें ताकि अपना आंसर मिनिमाइज हो जाए। तो बेसिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें सारे कॉन्सेक्यूटिव डिफरेंसेस की एक लिस्ट चाहिए होगी, मतलब। तो सबसे पहले तो वो बना सकते हैं हम। कोड करते हैं यार इसको, काफ़ी टाइम हो गया। सो C++ में करेंगे कोड इसको ऊपर। इनपुट फॉर्मेट क्या है, टेस्ट केसेस भी हैं क्या? हाँ, टेस्ट केसेस हमारे पे है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी। किसी का डाउट हो तो चैट में पूछ सकते हो। I'll answer while Pawan is writing the code. So इनपुट ले लेंगे हम लोग एरे में। ओके, सो एरे पहले से सॉर्टेड रहेगी तो हमें कुछ और तो हमने जैसे अभी डिस्कस, थोड़ी सी नॉइज आ रही है। अच्छा, कैसी कोई बात करने जैसी आ रही है क्या? नहीं, बात करने से एकदम कांस्टेंट साउंड आ रही है सर।
सो ये हो गया n-1 - 0। a of n अब minus हम 1 लोगों को क्या, minus a। नहीं मैंने डिफरेंसेस वेक्टर में स्टोर किए हैं ना। हाँ, डिफरेंसेस पर पहले तो अपना एरे का लिया है ना हमने, अच्छा, शायद आपने देखा। हाँ 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 हाँ, ठीक है। ठीक है ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, कितनी वैल्यूज उठानी है? अगर k दी हुई तो हम लोगों को k-1 उठानी है ना। हाँ, क्योंकि हम लोग k-1 कट्स बनाएंगे। तो ये चीज हमें अगर मैक्सिमाइज करनी है तो हमें जो सबसे बड़ी वैल्यूज है वो उठानी पड़ेगी ना इसमें से। तो मैं एरे को रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर दूंगा और स्टार्टिंग की k-1 वैल्यूज उठा लूंगा ताकि आंसर में से माइनस कर दूंगा। क्या करूँगा, सी आउट कर दूंगा आंसर को। देखिए सही लग रहा है ना कोड? सही लग रहा है। प्रिंट कर दे। काफी ज्यादा टाइम लगेगा मेरे को लग रहा है इस क्वेश्चन के लिए। हमने 20 मिनट से लगे हैं आराम। सही है। हाँ, आंसर 12 आ रहा है। चलो सबमिट करके देखते हैं। कर देना। ओके, करेक्ट आंसर आ गया। एसी। थोड़ा लैग। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अच्छा, हाँ, अब एसी है। चल ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आया तो गाइस डोंट वरी, वी विल एक्सप्लेन वंस मोर इन द एंड। हाँ क्योंकि अभी कॉन्टेस्ट चल रहा है तो हम लोग सोच रहे हैं कि कर लेते हैं। चलो फाइंडिंग फ्रेंड वाला करते हैं। अच्छा, नीचे वाला ले लेना, फिक्स का है कुछ। सेट बिट का सर नीचे वाला लो पहले। बिट्स का था कुछ। चलिए ले लेते हैं। तो प्रॉब्लम पढ़ लीजिए एक बार, एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, अरे ये तो स्टैंडर्ड जैसे ही है। 1 से लेकर n तक के बीच में हमें फाइंड करनी है कि कितनी बिट्स सेट हैं। अच्छा, और कंस्ट्रेंट। अच्छा, इसका कंस्ट्रेंट 128 तक दिया हुआ है। कंस्ट्रेंट से फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग तो इसको वैसे लॉगिन टैब में भाई इसमें देखते हैं ऑब्जर्वेशन ना कितनी बिट्स सेट हो रही है। एक सेकंड, तो देखना पड़ता है ये चीज ऐसे करके। एक नंबर वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन सही लिख रहा हूँ ना, ये देख ले एक बार। 110 111 और 100 सफिशिएंट है अभी। चल ठीक है। तो इसमें पहले हम ऐसे सोचते हैं ना कि 0th बिट कितनी बार सेट और अनसेट हो रही है ना, ऐसा पैटर्न देखना है। अच्छा, 0th बिट तो हर एक नंबर कंसेक्यूटिव टाइम्स जैसे सेट हो रही है, फिर अनसेट हो रही है, फिर सेट हो रही है। हाँ, वैसे ही फिर जो सेकंड बिट है वो 2 की पावर 4 में मतलब 10 मतलब 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1 2 बार। हाँ, 2 बार 0 है 2 बार 1 है, फिर अगली वाली ऐसी 4 बार 0 है 4 बार 1 है, फिर 8 बार 0 8 बार 1 है। हाँ, यही पैटर्न है ना। मतलब जो ith बिट है, अगर 0 बिट इंडेक्सिंग यूज करें तो ith बिट और 2 की पावर i के बाद फ्लिप हो जाती है, मतलब बेसिकली तो बोल सकते हो ना। हाँ, तो ith बिट 2 की पावर i के बाद फ्लिप हो जाती है क्योंकि हम 0 बिट इंडेक्सिंग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक बार नंबरिंग ही दे देता हूँ ना, 3 2 1 0 बोल कर देता हूँ। स्पेस है बोर्ड पर 2 की पावर i के बाद फ्लिप हो रही है और इसका ग्रुप का साइज, मतलब फ्लिप और अनफ्लिप वाला जो पूरा ग्रुप बन रहा है, एक 0th बिट पे 0 1 बन रहा है, तो उसका साइज क्या होगा? उसका साइज है और ऑटो कैपिटलाइज क्यों हो रहा है? बंद कर देना कहीं से। इनटू 2 रेज़ टू पावर 8
तो 2 into 2 raised to power आता है, फ्लिप का साइज है। एंड इसके बाद में हम बोल सकते हैं कि तो अगर कोई बिट पूरा मतलब, तो हम बेसिकली निकाल सकते हैं ना कितने ग्रुप आएंगे एन तक। हाँ सही है, क्योंकि जैसे ये फर्स्ट बिट है ना, तो ये मतलब ये 2 की पावर 1 के बाद, जैसे कि 2 की पावर क्या होता है, 2 होता है ना, तो उसके बाद जैसे 2 0 रहेगा, फिर 2 1 रहेगा, 2 की पावर 1, फिर ये ऐसे 2 की पावर 2 है तो ये 4 0 रहेगा, 4 1 करेंगे बेसिकली। तो इतना तो पता ही चल रहा है ना, इसको बिटवाइज सॉल्व करेंगे, हर एक बिट के लिए निकाल लेंगे ये कितनी बार सेट होगी, और मतलब ऐसे आंसर में ऐड हो जाएगा हर एक बिट का। और तो फिर ये कितने तक में होगा अपना, n है तो उसमें log n बिट्स होती है, ये अपने को पता है। n में log of n बिट्स होती है ना, log base 2 of n, तो ये हो जाएगा। तो जनरलाइज लिखते हैं ना, ith बिट के लिए क्या आंसर होगा, ith बिट के लिए कैसे होगा आंसर? एक 2 की पावर i ग्रुप साइज आ गया ith बिट के लिए, तो अपन निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होंगे। नंबर ऑफ ग्रुप्स, अब एक चीज और नोटिस करने लायक है कि हमेशा बिट्स पहले अनसेट होती है आधे पार्ट के लिए, फिर आधे पार्ट के लिए सेट होती है। पहले अनसेट फिर बाद में सेट। हाँ सही है, क्योंकि पहले अनसेट, क्योंकि स्टार्ट अनसेट से होता है। हम ग्रुप्स निकाल सकते हैं n बाय ग्रुप साइज। तो इतने सारे हमारे ग्रुप आ गए, कितने ग्रुप्स होंगे। और हमने देखा कि ith बिट 2 की पावर i बार सेट होती है, तो कंप्लीटली सेट होती है बेसिकली ये n बाय ग्रुप साइज से हमारे आएंगे जो कंप्लीट ग्रुप है, मतलब जो पूरे हो चुके हैं। हाँ है ना, हाँ जो पूरे हो चुके हैं, तो वो उसकी सेट कैसे आ जाएगी, मतलब 2 की पावर i इनटू हम अंडरस्टैंड से देता हूं। चल हाँ, उसके बाद कुछ होंगे जो मतलब पार्शियली आ रहे होंगे, तो पार्शियली वाले हम कैसे निकाल सकते हैं? वो कुछ पार्शियली आ रहे होंगे। तो एक n बाय ग्रुप साइज लिया, तो इससे तो हमारा आ गया कि मतलब टोटल कितने ग्रुप्स हैं। हाँ मॉड लेके हो जाएगा ना, n मॉड ग्रुप साइज, इससे हमारा आ जाएगा कितने सारे ग्रुप्स हमने अभी तक, कितने एलिमेंट्स हमने इंक्लूड नहीं किए। अब जो n मॉड ग्रुप साइज आया है उसमें ग्रुप साइज से कम एलिमेंट्स होंगे, मतलब 0 से ग्रुप साइज -1 बीच में कुछ एलिमेंट्स होंगे। उसमें हम बोल सकते हैं कि देख पहले 2 की पावर i बिट्स होंगे वो अनसेट जीरो रहेंगे ना। हाँ, उसमें से ऊपर के ग्रुप साइज बाय 2 होंगे वो 0 होंगे, तो इतने बिट्स हमारे बाद में सेट होंगे, और ये नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसका मैक्स वगैरह कुछ लेना पड़ेगा। मैक्स ऑफ 0 मैक्स ऑफ LL n1 8 है तो जरूरत नहीं है LL की, तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से। आवाज कट रहा है तेरा, आवाज कट रहा है। और कोई इसमें बन नहीं रहा है में, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है तेरा वॉइस। सही लग रहा है क्या आइडिया, ये बता। तो गाइस हम लोग बेसिकली ये सोच रहे हैं कि हमें वही कह रहा हूं, अब अल्टरनेट हो रही है, बस ये देख रहे हैं। तो 0th बिट जैसे कि 0 1 0 1 0 1 अल्टरनेट हो रही है। वन पोजीशन पे जो बिट्स है वो 0 0 1 1 0 0 1 1, तो ऐसे पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हम बस मतलब ग्रुप की साइज निकाल रहे हैं। यहाँ पे ग्रुप की साइज 2 है, मतलब 2 साइज ले ली 0 1, उसके बाद में वही रिपीट हो रहा है 0 1 0 1 0 1, और 1 बिट पोजीशन पे वो 0 0 1 1 है, वो ग्रुप रिपीट होता जाएगा 0 0 1 1 0 0 1 1। तो उसके बेसिस पे हम लोग निकाल रहे हैं कि कितनी नंबर ऑफ बिट्स सेट होगी हमारी। और किसी को डाउट है क्या चैट में? ठीक है, इसको कोड करते हैं। इसको नहीं आ रहा, शायद कोड करके देख लो। ठीक है, तो हमें चलना कब तक है भाई लूप? लॉग एन टाइम्स चलना है, तो वैसे लिख सकता है 1 शिफ्टेड बाय n की तरह, मतलब और बिट इक्वल टू 0 बिट इज लेस देन इक्वल टू n ना। हाँ वैसे बिट प्लस प्लस। तो बिट अभी क्या करना है हम लोगों को? ग्रुप साइज में और पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल ले, ग्रुप में कितने होंगे।
ग्रुप साइज कर लेते ना पहले। 2 × 1 शिफ्टेड बाय बिट हो जाएगा मतलब बेसिकली। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं? n बाय ग्रुप साइज। और आंसर कितना बनेगा फिर? पहले वेरिएबल डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। हाँ बाहर डिक्लेयर कर दो तो। पहला तो वही हो जाएगा ना कि 2⁻i इंटू नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो मैक्स ऑफ वही 0 कर देते हैं पहले। पॉजिटिव ही होगा ये तो। सही लिख रहा हूँ क्या भी कोड? है ना? अब आंसर प्लस इक्वल टू मैक्स ऑफ पार्शियल के लिए जो है नंबर ऑफ ग्रुप्स नहीं है तेरा वेरिएबल अभी तक, तुम्हें नंबर ऑफ एलिमेंट है तेरे का नाम। नंबर ऑफ एलिमेंट है। अच्छा, ग्रुप साइज में 2 करेंगे ना यहाँ पे। ओके, सही लग रहा है। इसके और कुछ तो नहीं ऐड करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। नहीं सही लग रहा है, एक बार रन करा के देख ले। अच्छा, वो LL ले लिया ना मैंने फालतू में। तो क्या हुआ? वो कंपाइलेशन एरर आ गई ना। वो मैक्स जो फंक्शन होता है उसमें सेम चाहिए होते हैं। इंट और लॉन्ग हो गया। 433 सही है क्या? गलत आ रहा है अपना 4 के लिए 5 और 35 एक कम आ रहा है। हाँ, एक बार ग्रुप साइज बाय 2 करेंगे क्या माइनस? ग्रुप साइज बाय 2 होगा। n बाय ग्रुप साइज किया है हमने 4/2 की पावर आई। वे एक बार ऊपर 4 ही नंबर लेते हैं तो 4 के लिए गलत आ रहा है ना अपना। हाँ, अरे 4 के लिए पता है क्यों गलत आ रहा है? हम लोग सीधा सीधा ग्रुप साइज इसमें क्या आ गया था? 8 आ गया था ना। ग्रुप साइज की वैल्यू आ गई थी 8 और n मॉड ग्रुप साइज किया था तो क्या वैल्यू आ रही थी? 4 मॉड वो तो 4 ही आ रहा था। और 4 - 4 अबे +1 करना होता है ना क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है तो। अच्छा n+1 करना पड़ेगा जहाँ भी n किया है। हाँ, क्योंकि जीरो बेस्ड है ना। दोनों n की जगह n+1 कर दो। नहीं, n+1 नहीं करना पड़ेगा। नहीं, n+1 वहाँ नहीं, यहाँ करना पड़ेगा जहाँ हम ये n मॉड में से माइनस कर रहे हैं ना। रन करा तो देख ले। n बाय ग्रुप साइज। देख, अभी तो आंसर सही आ रहा है मेरे ख्याल में। सबमिट मेरे को लग करके रहा एक था बार गलत तो नहीं आएगा? चल करके देख ले। सैंपल तो रन हो गए, बता करके देखें। कर दे, देखा जाएगा। करेक्ट आंसर वो वही थी, जीरो बेस्ड हो रही थी इसीलिए हम लोगों को 1+ करना पड़ रहा था यहाँ पे। एसी वे n की जगह n+1 लेता तो भी सही हो जाता मेरे को जहाँ तक लग रहा है। हाँ, क्योंकि n+1 मॉड करके ग्रुप देख साइज लेंगे। लेता तो एक ही ज्यादा आ जाता। पॉइंट कट जाएंगे फालतू में रीसबमिट के।
अच्छा थर्ड हाँ करते हैं, ठीक है, बाद अभी में नहीं देखते करेंगे, हैं। फिर बाद में देखेंगे। हाँ तो ये क्वेश्चन था, अभी पढ़ा था हमने। भाई मैथमेटिक्स आ गई अनिल सर, करिए एक्सप्लेन। अबे इधर थोड़ा लेट दिख रहा है मेरे को, तो थोड़ा नीचे स्लो करिए। हम्म। The following conditions are satisfied. अच्छा ठीक है, नीचे कर एक बार आप। स्क्रॉल कर, नीचे स्क्रॉल कर, नोट के नीचे बेसिकली चला जा। मैं हाँ ठीक है, तो पढ़ लिया मैंने प्रॉब्लम में, एक बार एक्सप्लेन करूँ क्या? करते एक्सप्लेन, तो टाइम है अभी। बेसिकली पहले तो अपने को गिवन है फ्रेंड्स की एक, मतलब वो गिवन है डेफिनेशन। तो ए और बी है, तो उनको उनका जी, उनका जीसीडी डिफाइन कर देते हैं। लेट्स सपोज जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी। तो उनको फ्रेंड्स तब बोलेंगे जब बी और ए बाई जी और बी बाई जी एक ट्राइंगल बनाए। और ये हमको पहले ही पता है कि अगर कोई तीन साइड्स है जैसे कि ए बी सी, तो वो ट्राइंगल तब बनाती है जब सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ये क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन है फ्रेंड्स की। और हमें बताना है कि 1 से n तक में ऐसे नंबर कितने हैं जिनका कोई भी फ्रेंड नहीं है। डॉट डॉट डॉट। अच्छा और हमें बताना है कि 1 से n तक में कितने नंबर है जिनका कोई भी फ्रेंड नहीं है। बेसिकली जैसे कि मैं अगर 4 का फ्रेंड देखना चाहूँ, अभी 4 का एग्जांपल लेते हैं, पहले देखते हैं। अगर 4 4 का मैंने ले फ्रेंड लिया, 2 हो जाएगा शायद। हाँ तो कैसे, एक बार देखते फोर हैं। 4 a इज इक्वल टू 4 है। इक्वल टू 4 है ना, ठीक है। तो मैं बी सपोज कर रहा हूँ 2 ले ले, तो जीसीडी कितना आएगा? जीसीडी 2 आएगा, और जी की वैल्यू 2 हो गई, ए बाई जी की वैल्यू 2 हो गई, और बी बाई जी की वैल्यू 1 हो गई। तो 2 2 1 से ट्राइंगल बन जाएगा, और किसी भी दो का सम थर्ड से ज़्यादा है। हाँ 1 प्लस 2 से ज़्यादा सही है। 4 तो कर रहे हैं, तो 4 रोल अभी एक तेरा एक मिल जाता है। वॉइस ब्रेक ऑफ हो रहा है तेरा बीच में, बट ठीक है। यार सर वो नेटवर्क ना की थोड़ी दिक्कत है। अगर अपन एग्जाम्पल टेस्ट केस बता दो, एग्जाम्पल टेस्ट केस क्या है? एग्जाम्पल टेस्ट केस है, एग्जाम्पल 10 दे रखा है। इक्वल टू 10 है, और आंसर कितना है? 3। ठीक है ना। बेसिकली सबका फ्रेंड निकालते हैं 1 से 10 तक। 7 8 9 10। तो 1 का फ्रेंड क्या होगा? 1 का किसी भी नंबर के साथ जीसीडी लेंगे तो 1 ही आएगा। तो हमारे दो नंबर हो जाएंगे 1 1, और एक नंबर मान लिया x है, तो x एटलीस्ट 2 होगा ही होगा, क्योंकि 1 से 1 के साथ निकाल रहे, तो 1 तो खुद के साथ तो ले नहीं सकते, फ्रेंड डिस्टिंक्ट होने चाहिए दोनों। तो 1 तो हमेशा तो अकेला x, रहेगा ना, 1 को तो कभी बन ही नहीं पाएगा ट्रायंगल। हाँ तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, तो 1 का तो कोई फ्रेंड होगा ही नहीं। तो यहाँ पे मैं x लगा देता हूँ, मुझसे कोई फ्रेंड नहीं है। एंड 2 का कैसे निकालेंगे फ्रेंड? 2 का फ्रेंड कौन होगा? 2 का फ्रेंड 1 होगा क्या? हाँ 2 का फ्रेंड 1 हो जाएगा ना। 1 1 2 1 कैसे होगा? जीसीडी 1 आ जाएगा, 2 1 नहीं होगा। 1 नहीं होगा जीसीडी ना, 1 आ जाएगा ना, तो 1 1 2 हो जाएगा। हाँ तो 1 फ्रेंड नहीं हो पाएगा ना, फिर 1 + 1 इक्वल टू 2 हो गया, तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। अच्छा लाइन बन जाएगी, हाँ सही है। और फिर 2 के साथ फ्रेंड के लिए 2 को हम चेक नहीं कर सकते, क्योंकि 2 खुद है। 3 को चेक कर सकते हैं, तो 2 और 3 का जीसीडी होगा 1 अपना। और एक नंबर आ जाएगा जीसीडी जी 1 वगैरह, 2 बाई 1 3 बाई 1, तो इसका भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट नंबर है हमारा 4।
4 के साथ 2 का आ जाएगा, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखा था, अभी 2 के साथ 4 का सही आ रहा था। तो 2 के लिए फ्रेंड आ रहा है, स्मॉलेस्ट फ्रेंड आ रहा है 4। 3 के लिए क्या आएगा? 3 के लिए तो ये 1 नहीं 3 आएगा, के लिए 2 जैसे नहीं आएगा। 1 2 3 4 तो नहीं आ रहे, क्योंकि उनका जीसीडी 1 आ रहा है ना 3 के साथ सबका जीसीडी हाँ, 1 ही आ रहा है इन सबका। 5 का भी 1 आ रहा है। 6 को चेक कर सकते हैं 3 के साथ, हाँ और 9 को करते हैं। कैंडिडेट्स लिख रहा हूँ मैं बस सामने। 6 9 12, हाँ 9 12 15। ठीक है, मल्टीपल में से ही कोई होगा बेसिकली। तो हाँ 3 और 6 का जीसीडी कितना होता है? 3 और 6 का जीसीडी 3 होता है। फर्स्ट नंबर आ जाएगा 3/3, जो 1 हो जाएगा, और सेकंड नंबर आएगा 6/3, वो 2 हो जाएगा। तो इसमें भी लाइन बन रही है, इसमें भी नहीं हो पाएगा। 3 और 9 9 पे का जाके चेक चेक करते हैं। करते हैं। 3 और 9 का जीसीडी आएगा 3, और फर्स्ट नंबर होगा 3/3, 1 हो जाएगा, और सेकंड नंबर होगा 9/3, बन हो रहा है जाएगा 3। 9 पे बन जा रहा है। 3 हाँ, प्लस तो 9 पे 4। बन रहा है। तो अब आ जाएगा भाई पैटर्न पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न भी देख लेना चाहिए कभी कभी। स्क्वायर दिख रहा है। 2 के लिए 4, तो 3 के लिए 4, 9 2 के लिए 4, 3 के स्क्वायर लिए है। 2 दिख रहा है। 5 4 के के लिए, लिए हाँ क्या जब आएगा? 2 के लिए 4 था 4 के लिए 2 हो जाएगा। जब प्राइम है तो आ, स्क्वायर आ रहा है, ऐसा लग रहा है। 5 के लिए 25 हाँ अबे आएगा। क्योंकि क्योंकि ना 5 के लिए फिर बाकी सबके साथ तो वो जो प्राइम नंबर है वो जीसीडी 1 ही देंगे ना, प्राइम नंबर जो भी है। और उसके मल्टीपल्स है वो छोटा देंगे, मतलब थोड़ा। हाँ और अगर अगर मैं जैसे कि 5 के लिए अगर मैं 10 देखूं तो वो मेरे को फिर 1 2 5 हो जा रहा है, तो 1 + 2 की वैल्यू 5 से छोटी हो रही है, तो मेरे को तो बड़ी वैल्यू मतलब चाहिए होती है। प्राइम लेंगे तो इस फॉर्म के नंबर आएंगे। देख, प्राइम पी मान ले कोई प्राइम है, हाँ तो अगर कोई उसका नंबर फ्रेंड ले पी रहे हैं स्क्वायर पे जैसे, ही मिलेगा। आप पी स्क्वायर पे मिलेगा, पर इसको प्रूव कैसे करेंगे? मान ले इसका एक्स नंबर लेके कोई फ्रेंड चेक कर रहे हैं, और जी जीसीडी आ रहा है, तो एक्स अगर पी का मल्टीपल नहीं है तब तो जीसीडी 1 आएगा। 1 ही आ जाएगा, हाँ सही है। तो ट्राइंगल वैसे भी नहीं बन पाएगा। और अगर यहाँ पे हम पी का मल्टीपल लेते हैं कुछ के इंटू पी, तो हम्म, जीसीडी आएगा हमारा के। हाँ तो के यहाँ नहीं, पे इक्वलिटी क्या पी पी होना चाहिए? पी आएगा ना तो जिस जो जीसीडी स्मॉल होगा के और पी से। हाँ जीसीडी पी आएगा। हाँ ठीक है, तो ऐसे। और पी प्लस पी प्लस 1 इंटू पी। यहाँ से तो कुछ इक्वलिटी थोड़ा ना बना पा रहे हैं हम। अरे वो इंट्यूशन से ही ऐसा आ रहा है ना कि अगर पी स्क्वायर से छोटा रहेगा तो फिर वो ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है, क्योंकि दो साइड का सम फिर तीसरे से बड़ा भी तो करना है। पी पी स्क्वायर, तो हम नंबर ले रहे हैं, वो कौन से ले रहे हैं हम? पी पी स्क्वायर, और एक क्या आ रहा है अपना? बस जीसीडी आ रहा है पी। हाँ ऐसा हो गया ना, जीसीडी पी आ रहा है, तो पी से डिवाइड करेंगे तब अपने नंबर्स क्या आएंगे? 1 1 के आएगा क्या? हाँ 1 1 के से ट्राइंगल बनाना है अपने को। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ अलग होगा। प्रूफ गलत लिख दिया। अबे प्राइम के अलावा बाकी सब में तो मिल जा रहा है ना मेरे ख्याल में। 6 का देखते हैं। 6 के लिए कौन सा होगा बताओ? 2 6 के इंटू लिए तो 3 मेरे को होता लग है रहा है 6 पीछे ही 4 ही मिल जाएगा। इवन नंबर के लिए तो -2 करके ही मिल जाएगा, क्योंकि के लिए 4 होगा। सम, समझ रहे, जीसीडी की प्रॉपर्टी रहती है जो मिनिमम गैप रहता है वही जीसीडी आ जाता है दोनों का। 6 के मल्टीपल लिए आ गैप जाएगा वाला जो हमारा रहता है। 4। तो बेसिकली जो इवन नंबर है उनके लिए पीछे ही मिल जाएगा। हाँ इवन नंबर -2 करके मिल जाएगा। 5 का हमें पता नहीं, 7 का हमें पता नहीं। पर 3 के लिए 9 है, तो 9 के लिए भी 3 होगा। 8 के लिए कितना आएगा? 8 के लिए 6 ही आ जाएगा ना, 8 - 2 कर दे। 6 आ जाएगा। 9 के लिए 3 आ जाएगा। 10 के लिए 8 आ जाएगा। हम्म, तो 15 के लिए कितना आएगा फिर?
15 15 के लिए 12 आ जाएगा। तो 15 मैंने जो उनका जो वो होता है ना स्मॉलेस्ट जो फैक्टर रहेगा वो माइनस कर देगा ना, तो वही जीसीडी हो जाता है दोनों का। चलो ठीक है, अगर हम ऐसा लिखें Common n नंबर पे हम करंटली है n इक्वल टू एक्स इंटू वाई ले लेते हैं। चलो उसका फैक्टराइजेशन कर दिया हमने, मान ली 2 फैक्टर ले लिया x इंटू वाई। तो इससे दो छोटे नंबर ले लेते हैं हम कोई से भी, x माइनस 1 इंटू वाई, और एक छोटा नंबर क्या होगा? आयुष शाह क्वेश्चन पूछ रहा है, एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखा देता हूँ आयुष शाह। ये है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। बेसिकली हम लोगों को n दिया हुआ है और हम लोगों को मतलब बेसिकली क्या करना है, a और b अगर नंबर है तो ये चीज ट्रायंगल बनानी चाहिए। ये जो है जीसीडी ऑफ a कॉमा b, a डिवाइडेड बाय जीसीडी a ऑफ a b एंड b डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ a b, ये ट्रायंगल बना रहे हैं तो हम कहेंगे कि a और b फ्रेंड है। ठीक है, तो हमें n दिया हुआ है तो हमें बताना है कि 1 से n तक ऐसे कितने नंबर है जिनका कोई भी फ्रेंड ही नहीं है, अकेले हैं, तो वो हमें काउंट करना है। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर हुआ है? अरे हाँ चल कंटिन्यू करते हैं। तो मैं कह रहा था, देख मैंने 2 नंबर ले लिए ये, और ये मान लिया अपना a था, और ये लिया मैंने b इक्वल टू एक ये और एक ये, 2 केस ले लिए मैंने। तो फिर इस केस में जीसीडी क्या आएगा? x और x माइनस 1 का जीसीडी 1 होगा, तो इस केस में जीसीडी y आएगा, और इधर जीसीडी कितना आएगा? इधर भी सेम ही है, ऊपर ही लिख देता हूँ एक बार। इधर जीसीडी y और y माइनस 1 का y इंटू एक्स, एक्स इंटू वाई तो सेम ही हो गया ना। हो गया, फॉन्ट थोड़ा छोटा नहीं देख, हाँ। तो जीसीडी इधर क्या आ जाएगा? y और y माइनस 1 का जीसीडी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे जीसीडी x आएगा। तो यहाँ पे हमारे एरे के नंबर्स क्या बनेंगे? यहाँ पे हमारे एरे के नंबर्स बनेंगे x माइनस 1 a by g और y, a by g, b by g और g नंबर बन हाँ, गए, क्योंकि x इंटू y को x y से डिवाइड करेंगे। y माइनस 1 और x। देख अब इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करने का ट्राई करते हैं। तो x शुड बी ग्रेटर देन x माइनस 1 प्लस वाई। ये ट्रू होगी, हम हमेशा बोल सकते हैं, क्योंकि हमने जो यहाँ पे एग्जांपल लिया है इसमें a कॉम्पोजिट है, तो जो फैक्टर कर रहे हैं x, y वो दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही होंगे। तो y की वैल्यू एटलीस्ट 2 भी होगी, तो ये वाली इक्वलिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। और सिमिलरली x माइनस 1 ग्रेटर देन x प्लस वाई, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी। और एक इनइक्वलिटी क्या बनेगी? y ग्रेटर देन x प्लस वाई माइनस 1, x प्लस एक्स माइनस 1 सॉरी। तो एक इनइक्वलिटी हमारी ये बचेगी इस साइड, तो इसको हम ट्रू फॉल्स कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। एंड सिमिलरली इस साइड में इनइक्वलिटीज क्या बनेगी? y ग्रेटर देन y माइनस 1 प्लस एक्स, इसको भी क्लेम कर सकते हैं कि हम ट्रू ही होगा, क्योंकि x की वैल्यू एटलीस्ट 2 होगी। एंड सिमिलरली y माइनस 1 ग्रेटर देन y प्लस एक्स, ये भी ट्रू ही होगी। और एक इनइक्वलिटी इस साइड बनेगी y माइनस 1 प्लस एक्स शुड बी, साइन उल्टे लगा दिया मैंने इनइक्वलिटीज में इधर। ठीक है, मेरे को तो समझ में आ रहा है। मैं Okay, yeah. Hi, Anil. There is some network connectivity issue, right? पवन के end से। हाँ थोड़ा सा बीच बीच में हो रहा है। Right. So we'll wait for him. I think he has some network connectivity issue. So contest is running on his system, right? और पवन है यहाँ पे अभी। पवन अभी डिस्कनेक्ट हो गए थे, मैं उन्हें ऐड कर रहा हूँ। Okay. पवन, are you able to hear me?
हाँ, yes, now I'm able to Okay, hear. okay. Sorry, आप screen share disconnection हो गया था. Yeah, it's okay. Screen and camera is off. हाँ, I've shared. I have shared my Camera भी screen. You बंद है can तेरा. see that. Right. Yeah, it's loading, Pawan. Yeah. Okay, great guys, carry Okay, on. is it visible now? Yeah. हाँ, तो मैं बोल रहा था कि ये वाली इनइक्वलिटी सही है और ये वाली भी सही है. तो दोनों साइड में ये जो थर्ड वाली इनइक्वलिटी बच रही है इसको प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन की तरह देख सकते हैं हम लोग. यहाँ पे है ये हाँ, इक्विवेलेंट दोनों में से एक तो सही हो ही जाएगी. हाँ वही y लेस देन 2x माइनस 1 और या फिर इधर है x इज लेस देन 2 इंटू वाई माइनस 1. तो इन दोनों में से एक तो सही होगी ही होगी. तो इससे हम लोग क्लेम कर सकते हैं कि इफ n इज अ कॉम्पोजिट नंबर तो n से छोटा पेयर मिल जाएगा, मतलब उसके लिए छोटा नंबर मिल जाएगा बेसिकली. एंड अगर अब केस बचता है इफ n इज प्राइम. तो प्राइम वाले को क्या बोल रहे हैं हम लोग? हमारा क्लेम है कि n के लिए स्मॉलेस्ट क्लेम है कि पेयर फॉर कौन है क्या फिगर? I think अनिल उनका कुछ issues हो रहा है connectivity का. Pawan, are you here? पेयर नंबर इज n into n. इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं? पेयर नंबर इज n cross n. पवन की आवाज नहीं आ रही. हाँ फिर like उनका कुछ network issue हो रहा है I guess थोड़ा. So like Anil, I think the timer is in his system only, right? So let's see like how far we can go with the logic. No problem, we have like 15 minutes left. अगर वो आ जाएगा तो हम लोग कोड कर लेंगे. मैं तब तक लॉजिक परफेक्ट करने का ट्राई करता हूँ. Right, yeah, like no issues. So I'll just be connecting with him. Okay, मैं check करता हूँ. Okay, no problem. Yeah. तो इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं? Like in the meantime, if you want, you can share your screen so that our audience can see. Like, okay, Pawan is here, I guess. He's coming in a moment. Okay, I'll wait. Okay, yeah, he's here. Sorry guys, मेरे तो पवन आपको मेरी आवाज आ रही है? एक्चुअली आपके स्क्रीन नहीं है. स्क्रीन विजिबल नहीं है. रीशेयर. Okay. Pawan, your voice is breaking. Can you just reconnect, like, please, if it's possible? Yeah, Anil, in the meantime, if that shareable document, if you can present, it will be really great. Or we can wait for Pawan, no issues. Okay, like I see that there is some, until this connection becomes stable. In the meantime, at least, I think both of you have almost arrived to the logic, I believe. Yes. We just want to prove our logic before submitting. We have claimed, okay, we know the logic almost. Okay. That's great. Should I share my screen? जब तक Pawan it will be great. Yeah. Okay, Pawan is here. Pawan,
Okay, in the Yeah. meantime, his screen sharing becomes stable. Anil, please share, because I see that Pawan is still having some issues, I believe. Okay. Okay, I'll share. Yeah, that will be Yes. great. Yeah. Oh, is my screen visible? Yeah, it's loading, Anil. Yeah, and it's visible. Yeah. Okay, so what I'm trying to do is we have already Okay. proved that if n is a composite number, then n का n से छोटा कोई ना कोई pair number मिल ही जाएगा. और if n is a prime, then we have a claim that smallest pair number for n is n square. So I'm just trying to prove that using contradiction. So Okay. Anil, really sorry to interrupt you. Just a second. I think Pawan's screen is visible. Pawan, are you able to hear? Okay, he's again got gone. disconnected again. Okay. So I I'll guess continue. he is connected. Yeah. Please continue. Sorry to interrupt you. No problem. So I'm going to try some multiples of n, and I'll try to check if they are friends of n. So सबसे पहले 2 into n और n को चेक करेंगे. तो क्योंकि n is a prime, तो उनका GCD आएगा 2 and n by 2. नहीं, उनका GCD आएगा n basically because n is a prime. तो हमारे numbers आएंगे 1, 2 and 1. So this will not make a triangle. So similarly, I'll try to check n, 3 into n, and GCD आएगा इनका फिर से n. So this will be 1, 3, 1. Again, not making a triangle. N 1, 3, 1 आ रहा है. Next, I'll try to check n square. Our claim. तो n और n square का GCD आएगा n. Okay. एंड और तो 3 नंबर हमें कौन सी चेक करना है? एक चेक करना है जीसीडी. सॉरी, यहाँ पे n आ रहा था जीसीडी, तो पे n लेना था. तो n क्योंकि बड़ा प्राइम नंबर है, लाइक वी हैव टेकन अप टू यहाँ पे 5 into n, तो 5 से बड़ा ही सपोज करते हैं. तो 1 + 2 की वैल्यू 3 ही है, तो n 5 से बड़ा है, तो यहाँ ट्राइंगल नहीं बनेगा. सिमिलरली यहाँ पे 3 + 1 4 ही है, n 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बनेगा. एंड यहाँ पे हमारा जीसीडी आ गया n by n की वैल्यू आएगी 1 एंड n स्क्वायर बाय g आएगा n. तो n 1 और n इनका ट्राइंगल बन जाएगा. n 1 n ट्राइंगल बन जाएगा क्योंकि n + 1 इज ग्रेटर देन और n + n इज ग्रेटर देन 1, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. तो वी कैन से दैट स्मॉलेस्ट फ्रेंड फॉर n इज n स्क्वायर. तो अगर n कॉम्पोजिट है तो n से छोटा फ्रेंड मिल जाएगा. तो 3 कंक्लूजन है, मैं तीनों लिख देता हूँ. पवन, हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग? देख रहा हूँ एक सेकंड. अरे नो कोड करना पड़ेगा यार. 7 minutes ओनली. Okay, guys. So I'll just Let yeah, me just please. Yeah, Pawan, your connection is stable, right? Okay, so yeah, I think Pawan can share the screen. Okay. So yeah, I have shared. You can. Okay. So Anil, should I share the screen of Pawan, or like you're Yeah, writing sure, some no problem. confusion? Okay, No okay, problem, Anil, you can over share to the you. screen. Okay, great. If n is composite, then we can find friend smaller than n. So the basically, logic is conclusion is we have to find all the numbers. we have to just count the number of primes between root of n and n. Okay, yeah, right. यही करना है बस. तो मैं क्या मतलब c बना लेता हूँ ना पहले तो. n की वैल्यू कितनी है? 1/6 है, तो 1/6 प्लस कुछ तक बना ले. 6 तक बना लेगा. ठीक है. कांस्टेंट n टाइप कुछ डिफाइन कर देता ना. ठीक है, कोई नहीं.
सही बता देना अगर मैं कहीं गलत लिख रहा हूँ तो। उसके बाद क्या कर लेते हैं अपन, स्टोर सही करें है, क्या देख वो? रहा हूँ। और एक वेक्टर में स्टोर कर ले, बाइनरी सर्च या मतलब लोअर बाउंड अपर बाउंड से देख लेंगे कितना है बीच में। अच्छा अच्छा, हाँ सही है सही है। और ग्लोबल ले लियो जिसमें स्टोर कर रहे हैं। हाँ भाई, जे प्लस इक्वल टू आई होगा। थैंक यू आयुष। राइट राइट राइट। जे प्लस इक्वल टू नाइस। इनर लूप में। ये मिस्टेक, हाँ हाँ समझ गया समझ गया। जे प्लस इक्वल टू बैक आई। यार बहुत ज्यादा टाइम प्रेशर हो रहा है, 5 मिनट बचे हैं। अच्छा क्या आंसर क्या होगा? हो जाएगा, हो वन जाएगा। तो हमेशा ही होगा क्योंकि मैंने प्राइम में 1 ही डाल रखा। 1 प्लस हमेशा ही स्क्वायर रखना रूट है। ऑफ एन से नहीं, 1 प्राइम में डाल रखा है फिर भी एक मतलब सेकंड एक सेकंड। 1 n/2 से n के बीच में आएगा नहीं ना। वे टेस्ट मैंने केसेस 1 भी है, प्राइम में नहीं मल्टीपल है, डाला ना। मल्टीपल टेस्ट केसेस भी है, तो हाँ हाँ 2 वही तो क्वेरीज चीज़ है। भेजे ना। इन टाइम स्क्वायर रूट उससे आगे का कैसे निकालें भाई? बाइनरी सर्च लगानी पड़ेगी ना फिर तो, टेस्ट केसेस हैं। अबे नहीं नहीं, वो लिख लेना, लोअर बाउंड अपर बाउंड से हो जाएगा ये। देख, सबसे पहले उसका स्क्वायर रूट निकाल ले, हाँ हाँ मतलब इंट के इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन ले ले। अच्छा हाँ नहीं नहीं, बाइनरी सर्च निकाल। हाँ समझ गया समझ गया। हाँ इसके बाद और अगर मतलब के इंटू के नॉट इक्वल टू एन है तो के प्लस प्लस कर ले, क्योंकि मतलब एन के स्क्वायर रूट ऑफ एन के हाँ बाद के ही काउंट करने हैं अपने को। नॉट उसके बाद इक्वल उसके टू एन, बाद वहाँ पे लेस देन इक्वल टू एन होगा हाँ सॉरी। ठीक है वो करते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे कितना आएगा, हाँ अपर बाउंड ऑफ के माइनस, एक सेकंड, किससे किसके बीच में काउंट करना है अपने को। लुक, हाँ लुक, मतलब अपर बाउंड ऑफ एन माइनस लोअर बाउंड ऑफ के हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अच्छा, अपर बाउंड ऑफ प्राइम डॉट बिगिन, अच्छा अच्छा ठीक है। अपर बाउंड ऑफ प्राइम डॉट बिगिन प्राइम डॉट एंड माइनस लोअर बाउंड ऑफ प्राइम डॉट बिगिन। देख लेना कोई भी टाइप हो तो मैं डायरेक्ट सबमिट करने नंबर वाला नहीं हूँ। लिखा तूने, लोअर बाउंड में वो नंबर देना भूल गया तू। अपर बाउंड में एन दे पहले में। हैश लगाना, स्टार लगाना पड़ेगा? नहीं। कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, वो दोनों इटरेटर है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हाँ 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 ठीक है ना, सही सही लिखी है ना ये? नहीं, तो वो नंबर इनपुट देना भूल गया। प्राइम डॉट बिगिन से प्राइम डॉट एंड में एन, अपर बाउंड में थर्ड थर्ड अच्छा वो अच्छा अच्छा। आर्ग्यूमेंट। हाँ 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 ठीक है। दोनों में एन होगा ना? नहीं उसमें के पहले में एन होगा। होगा, सेकंड में के होगा। प्राइम डॉट एम्प्लेस फेक वर्सेस प्राइम डॉट पुशबैक बता दिए इसके बाद में थोड़ा। यार ये सबमिट तो हो जाए तो एकदम वो हो गया, फील हो गया। कहीं टाइपो तो नहीं है? तूने पूरा चेक किया था ना? मैंने कहीं टाइपो तो नहीं किया है? या बता रहे हैं। कहाँ किया था कहाँ किया था? रन टाइम एरर आ रही है यार। क्यों आ रही है? एक बार रिकम्पाइल करके देख ले। नहीं यहाँ से ही लिखा है ना, टी सी इन एन लिया है, टी लिया है, टी माइनस माइनस है, के इज इक्वल टू एस क्यू आर टी ऑफ एन कर दिया, और के इंटू के इज लेस देन एन है तो के प्लस प्लस कर दिया, लेस देन इक्वल टू। सही लग रहा है। और इधर अपर बाउंड प्राइम डॉट बिगिन प्राइम डॉट एंड एन, लोअर बाउंड बिगिन एंड के। ऊपर तक एक बार। वेक्टर डिफाइन नहीं किया तूने, चैट में कोई बोल रहा है।
नहीं, ये किया है ना, ग्लोबल किया है। वो तो कंपाइलेशन देता ना, रन टाइम है यार, टाइम ही नहीं बचा। Guys, that is v dot implies back of or j prime dot implies back. How is it? 2 into I. Line number 19. Oh, Is it fine? yeah, it's fine. हाँ, yeah, v dot emplace back is I think fine. क्योंकि ऊपर आपने प्राइम लिया है या वी लिया है, लाइक आई एम जस्ट चेकिंग. Oh, sorry, ऊपर मैंने प्राइम दिया लिखा था ना. Right. Submit कर दो डायरेक्ट. Yeah, let's see. Right. बस सही बोल रहा था बंदा, वी नॉट डिफाइंड. Yeah. नीचे सब प्राइम ही है ना, देख ले. वो नीचे प्राइम लिखा था लोअर बाउंड अपर बाउंड में, या वी लिखा था? क्यूइंग है यार, फिर से रन टाइम है. हो गया. Okay guys, so no issues. Like that was really a great feel, like वो pressure situation, right? So too much time in audience, explaining, right? Yeah. और बीच में थोड़ी नेटवर्क इशू भी हो गई थी, so it's fine. Okay, so yeah, some questions. Sanath has a question, right? Prime dot implies back. Okay, Anil has. Okay, Pawan. Okay, there is some again network connectivity issue, right? So Anil, क्या आप आंसर कर सकते हैं? ये सारे questions फिलहाल. Yeah. चैट में क्या क्वेश्चंस है अभी फिलहाल तो? Yeah, like Sanath is asking prime dot implies prime back versus implies back. As far as I know, दोनों के सिंटैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, हेलो, am I audible? Yeah, Anil, you are audible. Am I audible? Hello. हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको. Hello. Yes, so, I can hear you. तो I was saying कि दोनों के सिंटैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. And apart from that, जब हम लोग पुशबैक यूज करते हैं तो पहले एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. Okay. जब हम पुशबैक यूज करते हैं तो पहले एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और फिर वो वेक्टर के एंड में कॉपी होता है. एंड जब हम एम्प्लेस बैक यूज करते हैं तो डायरेक्टली एंट्री इज पुश बैक इनटू द वेक्टर. सो दोनों की परफॉर्मेंस में भी थोड़ा सा फर्क होता है. एंड okay, so now I guess Anil, there is some network issue. So no problem. One point I want to make, that the last submission we have made was accepted. It was the like the statement we saw was of the previous solution. So the final solution was the accepted one. So yeah. Okay, that's great. That's great. Like आपकी screen sharing बंद हो गई थी भवन, like network issue के कारण. Yeah. Okay, that's great. That's nice. Like मुझे तो personally बहुत मजा आया. Like sorry for this network issue. No, it's fine. It's fine. Like I was like really sorry. We want to make sure next time that it will not be the case. Yeah. No issues. Like that's okay. Like Anil was just explaining difference between in-place back and push back. So can we just like have it from you? Yeah, right. Yeah, exactly. So in-place back and pushback, like there is not much difference in like the way we use them, but in-place back is bit faster than pushback, because when we do the pushback query, then like when the thing which we are pushing pushing into the container, one copy of it is like created first, and then it is like pushed into the container, like in vector or set anything. But when we use the in-place back operation, then it is directly like we are not wasting some time in creating the copy of it, but instead of that, it is directly like set into the container. So this is a small difference between in-place back and pushback. And in long term, when there are like many operations we are performing, that in that case, in-place back is efficient, like thoda sa efficient रहता है. That is why we use, like I generally prefer using in-place back. So this is a small difference. Right. Okay. And yeah, Ayush is asking, could you go through the solution briefly? So Ayush, can you just tell me like which one, first, second, or third question, or the third question, like are you referring to? Okay. And in the meantime, like Pawan, मैं आपसे जानना चाहूँगा, like हमने तो कोशिश करी जितना हो सके, we try to mock the concept of pure programming, right?
आईसीपीसी में यूजुअली जो टीम की काउंट होती है वो 3 होती है, राइट? एंड देयर इज एक रिजर्व भी होती है, राइट? सो क्या आप उस पर थोड़ा एम्फेसिस डालना चाहेंगे? हाँ, मतलब जनरली आईसीपीसी में ऐसा रहता है कि जो कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं तो हर साइट के लिए मतलब एक पर्टिकुलर कॉलेज से हर एक साइट के लिए एक टीम जाती है, मतलब इन जनरली। तो वो चीज रहती है क्वालिफाई करने के लिए कि आप अगर अपने कॉलेज में बेस्ट रैंक लेके आ रहे हैं उस साइट के लिए तो you will be eligible for the regionals, and apart from that there are some also like open seats which are available. So अगर आप मतलब ऐसे टॉप हर साइट के लिए रहता है तो टॉप 20 टॉप 30 अगर ओवरऑल भी आप लेके आते हो तो you will be eligible for like regionals, ICPC regionals. So ये दो तरीके रहते हैं यार, हाँ, क्वालिफाई करने के लिए। तो मतलब if हाँ बोलिए। हाँ, तो बेसिकली यही चीज है कि अगर आपके कॉलेज में लाइक इफ देयर इज लेस कोडिंग कल्चर, मतलब कोडिंग कल्चर अगर कम है तो इट विल बी इजी फॉर यू टू क्वालिफाई थ्रू दैट कॉलेज रिजर्वेशन, लाइक कॉलेज रिजर्व सीट के थ्रू। बट अगर कॉलेज में भी कंपटीशन अगर आपका सीपी में है मतलब ज्यादा, तो इट विल बी आल्सो टफ देयर आल्सो। सो दिस इज सो लाइक एक रिजर्व लेके जानी होती है या फिर ओनली 3? हाउ इज इट? 3 people? अच्छा, वो ऐसा टीम मेंबर या इट इज लाइक हम एक रिजर्व मेंबर भी लेके जा सकते हैं या सो 3 मतलब पार्टिसिपेट वहां पर ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट देयर विल बी ओनली 3 मेंबर्स। बट इफ यू वांट टू लाइक एक रिजर्व मेंबर लेके जाएं कि बाय चांस किसी की तबीयत खराब हो गई या कोई भी इशू आ गया, इन दैट केस यू कैन लाइक टेक द रिजर्व वन। That's great. That's so nice. Like जिस तरह से आपने explain किया. Okay. So Ayush is asking the solution briefly for the last one. अच्छा, ओके, लास्ट वन ब्रीफली। सो आयुष, आई थिंक मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया था बेसिकली कि हाँ मतलब ए बी नंबर का मतलब हम लोगों को वो ढूंढना था, जैसे कि लाइक क्वेश्चन आई थिंक यू गॉट द क्वेश्चन राइट। सो द क्लेम फॉर द क्लेम विच वी हैव मेड देयर वाज द नंबर विच इज नॉट प्राइम is always like we will always get at least one from friend of the number which is not prime, and वो प्रूफ किया था हमने ड्यूरिंग लाइक स्क्रीन शेयर में, हम लोगों ने डॉक में वो चीज पूरी प्रूफ की थी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के साथ कि अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है तो उसके लिए हमें हमेशा मिल जाएगा वो नंबर जो उसका फ्रेंड रहेगा, मतलब ट्रायंगल बन जाएगा। बट अगर कोई नंबर प्राइम है तो लेट एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं कि जनरली हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमारा नंबर है 5, ठीक है? 5 जो है हमारा प्राइम नंबर है, ओके? तो 5 के साथ अगर हम किसी भी मतलब जैसे 5 के मल्टीपल्स को छोड़ के अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं तो 5 के साथ उसका जीसीडी हमेशा 1 आएगा। अगर मैं 5 के साथ 6 लेता हूँ तो हमेशा जीसीडी 1 आएगा। यही पॉइंट होता है उसको प्राइम कहने का बेसिकली। तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा उसका। तो उस केस में हम ट्रायंगल कभी भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अगर मैं 5 और 6 ले रहा हूँ तो उसका जीसीडी 1 आ रहा है, ठीक है? तो 5 डिवाइडेड बाय 1 और 6 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे जो साइड्स बनेंगे ट्रायंगल की वो बनेंगी 1, 5 और 6, ठीक है? तो इस केस में क्या हो रहा है कि 1 + 5 = 6 आ रहा है, जबकि ट्रायंगल की कंडीशन होती है कि किसी भी दो साइड का सम ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। सो ये तो चीज़ क्लियर होगी कि जीसीडी अगर 1 आ रहा है तो वो नहीं बन पाएगा। अब केस लेते हैं हम 10 का, ठीक है? तो अगर हम 10 उठा रहे हैं, 5 और 10 का जीसीडी क्या आ रहा है? 5, ओके? सो तो जो साइड्स ऑफ ट्रायंगल हमारे बन रहे हैं वो 5 डिवाइडेड बाय 5, 10 डिवाइडेड बाय 5 और 5 इटसेल्फ। सो बेसिकली so I'll continue from here, no problem. Yeah, sure. तो That's really great. अगर हम 5 के मल्टीपल्स लेंगे तो जैसे पवन ने एग्जांपल लिया 5 और 10 अगर हम ले रहे हैं तो उनका जीसीडी 5 आएगा और हमारे साइड्स बन जाएंगे 5 एक, क्योंकि 5 कुछ जीसीडी है, एंड 5/5 विच इज 1 एंड 10/5 विच इज 2। तो हमारे ट्रायंगल के साइड्स आ गए 5, 1, 2। तो 5, 1, 2 से वापस ट्रायंगल नहीं बनेगा क्योंकि 1 + 2 = 3 विच इज लेस देन 5। तो ऐसे ही हम कंटिन्यू करके देखें, अगर हम 5 and 15 लेंगे तो फिर से हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा क्योंकि साइड्स आएंगी 5, 1 and 3। तो अगर हमें ट्रायंगल बनाना है तो एटलीस्ट हमारी एक साइड वापस से 5 आनी चाहिए, जैसे कि 5, 1, 5, तभी हमारा ट्रायंगल बन पाएगा। जैसे तो एग्जांपल अगर हम कंटिन्यू करें तो 15 पे हमारी साइड कितनी आ रही है? 5, 1 and 3 आ रही है, क्योंकि 15/5 is 3।
सिमिलरली 20 पे 514 आएगा एंड 25 पे 515 आएगा, तो वहाँ पे हमारा ट्राइंगल बन जाएगा, क्योंकि 5 + 1 विच इज 6 इज ग्रेटर देन 5 आ जाएगा। तो 5 के लिए जो हमारा स्मॉलेस्ट फ्रेंड होगा वो हमारा 25 आएगा। तो कोई भी प्राइम पी है, ऐसे उसके लिए एग्जांपल लेके तुम लोग ट्राई कर सकते हो। स्मॉलेस्ट फ्रेंड आएगा p²। तो हम फिर उसके बाद में हमने जो कोड किया, कोड में हम लोग ये लिख रहे थे कि √p से बड़े जितने भी प्राइम है उनके लिए √n से बड़े जितने भी प्राइम्स होंगे उनके लिए हमें फ्रेंड नहीं मिलेगा। तो जैसे लेट सपोज हमारा n 50 है, तो हमें 7 के लिए फ्रेंड मिल जाएगा, 7² 49 विच इज लेस देन 50, तो 7 के लिए हमें फ्रेंड मिल जाएगा। देन 7 के बाद में हमारा नेक्स्ट प्राइम इज 11, तो 11 के लिए फ्रेंड हमारा होगा 11² विच इज 121। तो 11 के लिए हमें 1 से 50 रेंज में कोई फ्रेंड नहीं मिलेगा, तो हमारा 11 लोनली में काउंट हो जाएगा। सिमिलरली जो हमारे √50 के बाद में जितने भी नंबर्स आएंगे, मतलब 7 से 50 के बीच में जितने भी प्राइम्स आएंगे वो हमारे लोनली होंगे, एंड +1 हमेशा लोनली होगा, वो भी हमने कहा है। सो आई होप आई एम क्लियर। Okay. Yeah, Ayush, do you have any other doubts? Like Anil, काफी अच्छा explain किया आपने, like the way you taken forward, like पवन के थोड़ा network issue के बाद, and thanks to you पवन, like आपने भी बहुत अच्छा explain किया चीजों को, right? मुझे तो in fact बहुत मजा आया, like I was just viewing the way one person is coding and other is reviewing. आप लोग दोनों ने एक साथ logic build up किया, that was really great. Like I hope the audience has also liked it. Okay, so that's great. Okay, I think there is some network issues. No issues, guys. So audience, any more questions? Like I hope we are done for today. Okay, we'll be coming up with more streams, okay, in future. So please ask if you have any more doubts, and yeah, Sure, Ayush, you can try it, and if you have any doubts, further doubts, you can contact me somewhere. You can contact me on my LinkedIn, I guess. It's Anil Kumar. You can search me. okay, so that's great. Okay, like our team members are always there to help you. I hope today's session was productive in terms of coding. Okay, thank you, Anil. Thank you for giving such beautiful content. Okay, and I hope like if Pawan is here, like I should thank him also. But I think there is some network issues. So no, it's okay. No, like it's no issue. It's fine. Okay. So yeah, great, Ayush. So thank you for your wonderful comments. Okay, I hope everything is clear. Okay, guys. So that's it from our end. Okay, we'll be seeing you in our next live stream. Thank you for your wonderful comments. Thank you for joining Geeks for Geeks practice. Do watch our live streams. Okay, stay tuned. Thank you. Bye, Anil. Okay. We will see the audience next time. Okay, thank you.